Good morning, students. I welcome all my dear students in the English online lecture. So, students, let us begin learning with our subject English. We are going to learn English subject of Standard First. So let us begin with our subject English. So students, I request you all to open your English Balbharti textbook, your English notebook, and to carry a pencil with you, and also the required materials you need for your online lecture. Myself, Miss Pooja, I am going to teach you the subject English of Standard First. So, let us begin with our Unit 5. Students, for learning Unit 5, I request all the students to open your English Balbharti textbook of Standard First. So students, those who are having the English Balbharti textbook, kindly open your textbook, and those students who are not having the textbook can just click on the link given in the group of Maharashtra State Board textbook application. So you can just click on that link and you can download the textbook from the application. So students, I request you all to open the textbook and kindly watch the lecture. बच्चों, आपको आपकी इंग्लिश की बाल भारती टेक्स्ट बुक ओपन करना है. आज हम यूनिट 5 नया लेसन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में. सो in the unit 5 we are going to learn lesson number 2, the shapes. In the yesterday's previous online lecture of English, we have studied and completed the poem number 1, We Are Opposites. Now in our today's English online lecture, we are going to study lesson number 2, the shapes, from unit 5. Lesson number 2, Dove shapes. D-O-U-G-H, Dove, S-H-A-P-E-S, shapes. Students, unit 5, lesson number 2, Dove shapes. Before starting and explaining the lesson, let me tell you in short that what are we going to study in our today's lesson. बच्चों, आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि आज के लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज का लेसन बच्चों आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि ये लेसन में आपको एक्टिविटी दी गई है जो मैं खुद आपसे बनाकर इस वीडियो में शेयर करूँगी. तो हमारे लेसन का नाम है डव शेप्स. डव, D-O-U-G-H, डव. इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डव. डव यानी आटा. आपकी मम्मी चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, ये सुनो बच्चों. यस, तो रोटी बनाने के पहले हमें क्या लगता है? आटा. तो उसे कहते हैं डव. उससे हम शेप्स बनाएंगे. आप सभी को पता रहेगा शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, ये सारे शेप्स है. तो हम आज के लेक्चर में आटे से शेप्स बनाने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, in our today's online lecture lesson, we are going to learn dove shapes. Dove means wheat or
flour, you can say wheat flour or मैदा flour or any flour you can take. Dough means आटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आटा, उससे हमें बनाना है shapes. Now let us begin with our lesson. तो बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो कि आटा ऊपर बोल में दिया गया है, तो उससे हमें शेप्स बनाने हैं. आप नीचे देख सकते हो अलग अलग शेप्स हम बनाएंगे, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, कोन, रिंग, बॉल. और ये एक एक्टिविटी है जिसे आप एंजॉय करोगे. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 44. So students, in your Bal Bharti textbook, English Bal Bharti textbook, open पेज नंबर 44. बच्चों, आपको आपके इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 ओपन करना है. लेसन का नाम है लेसन नंबर 2, डव शेप्स. द नेम ऑफ द लेसन इज लेसन नंबर 2, डव शेप्स. नाउ you can see in the picture there is a activity given to you all. Try this and tell the others. बच्चों, आप देख सकते हो वीडियो में कि हमें इसे ट्राई करके बताना है और हमारे शेप्स बनाने हैं. Now you can see in the first picture given to you all. Let us see the picture carefully and then we will start with our lesson and activity. Now students, you have to watch this carefully as you have to do at your home and you have to send me the picture that you have prepared the shapes. बच्चों, आपको ये घर पे आटे से बनाने हैं शेप्स, तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि यही आपका होमवर्क रहेगा. आपको शेप्स बना के इसका फ़ोटो मुझे भेजना है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी इसे बनाने के लिए. हम देखेंगे व्हाट यू नीड मतलब हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ गिवन फ्लावर 1 कप, सॉल्ट 1 कप, ऑयल 4 टीस्पून्स, वाटर, seeds or dal for decoration. Now students, you can see the ingredients are given to you all. Ingredients are flour. फ्लार यानी आटा. बच्चों, फ्लार इंग्लिश में किसे कहते हैं? आटे को फ्लार कहते हैं. तो आप डव शेप्स बनाने के लिए आप ये याद रखना कि इसमें आप मैदे का आटा लेना. वाइट कलर मैदा होता है. गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो, जो भी आटा आपके पास है, लेकिन मैदे से एकदम सॉफ्ट और शेप्स बहुत ही अच्छे बनेंगे. 1 कप आपको आटा लेना है. सॉल्ट यानी नमक, 1 कप आपको नमक लेना है. ऑयल, जो तेल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो 4 टीस्पून लेना है, 4 चम्मच लेने हैं. वाटर, पानी लेना है ग्लास में, हाफ ग्लास. सीड्स और दाल फॉर डेकोरेशन. हमारे शेप्स बनने के बाद हम उस पर दाल या कोई भी तरीके का सीड्स यानी जो पल्सेस है वो हम चिपका सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डव शेप्स. नाउ लेट अस सी how to prepare dough shape and how to prepare the dough. To prepare the dough, they have said the following ingredients. बच्चों, आटा तैयार करने के पहले डो यानी आटा, तो हमारे पास आटे का पाउडर है, उसको हम कैसे बनाएंगे कि वो आटा बनेगा, तो आपको मैं बताने वाली हूँ एक शॉर्ट वीडियो में कि हमें आटा किस तरीके से बनाना है, सानना है, जिससे हमारा डो रेडी होगा. ओके स्टूडेंट्स,
I am going to explain you step by step how you can convert the flour into a dough. Okay, students? So let us see. Now I am going to show you what do you do. Put the flour, the salt and the oil in a bowl. Add half cup of water and mix well with a spoon. Add more water if the dough is dry. Add more flour if the dough is sticky. Mix well. Soon your dough will be ready. Okay, students, so this is the procedure. Let us see. I am going to show you through a short video that I have prepared. Put the flour, the salt and the oil in a bowl. Add half cup of water and mix well with a spoon. Add more water if the dough is dry. Add more flour if the dough is sticky. Now, students, you can see that I have shown you all how to prepare. I have just used the water in the above video. Soon your dough will be ready. बच्चों, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया. मैंने यहाँ पे सिर्फ वाटर का पानी का यूज़ किया, जिससे कि मैंने आटे को पाउडर से डो में आटे को तैयार किया, रेडी किया. तो आप उसी तरीके से आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो. यहाँ पर मैंने मैदे का आटा लिया था, क्योंकि मेरा शेप्स जो है डो में आगे जो बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छा बनेगा. स्टूडेंट्स, आई हैव यूज द फ्लावर, मैदा फ्लावर, so you can use that. You can see that soon your dough will be ready. You can knead the dough, you can press the dough, you can squeeze the dough, you can roll the dough and give it any shape you like. Shape the dough to make any shape of your choice. बच्चों, यहाँ लिखा है टेक्स्ट बुक में आपका आटा, जैसे आप देख सकते हो मैंने दिखाया है आपको, प्लेट में मैंने रेडी किया है बाउल में. तो उस तरीके से मेरा आटा रेडी है. अब इसे मैं नीड यानी उसे गूंद सकती हूँ, सान सकती हूँ, स्क्वीज यानी उसे प्रेस कर सकती हूँ, रोल कर सकती हूँ और इससे कोई भी शेप में बना सकती हूँ. सो स्टूडेंट्स, शेप द डाउ टू मेक एनी शेप ऑफ योर चॉइस. अब हम शेप्स बनाएंगे. Students, now you can see that we have to prepare the shapes. So here in the bowl I have taken the dough and the dal. I have taken here two types of dal, that is yellow color tuar dal, and you can take the red color masoor dal for decoration or decorating the shapes. बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि शेप्स आप देख सकते हो. नीचे बुक में सर्कल, रेक्टेंगल, क्यूब, कोन, इस तरीके से शेप्स हमें आटे से बनाने हैं. और यहाँ पर मैंने दाल डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ. सो स्टूडेंट्स, you have to prepare the shapes. Okay, so I am going to show you the shapes that I have prepared. बच्चों, मैं आपको अब शेप्स बताने वाली हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, और मैं आपको बताऊँगी उनके नाम क्या है और आप किस तरीके से उसे बनाओगे. I am going to show you the shapes prepared by myself. Now students, open your page number 45 of your English Bal Bharati textbook. Page number 45. The next point, decorate your dough shapes with onion seeds,
मस्टर्ड सीड्स, मसूर दाल एक्सेट्रा। बच्चों मैंने अभी आपको बताया, मैंने बाउल में 2 दाल लिए थे, एक रेड कलर तुअर दाल लिया था और मसूर दाल, रेड एंड येलो कलर was the tuar dal and red color was the masoor dal. So you can take the onion seeds, mustard seeds और मसूर दाल for decorating the shape. बच्चों अब आप आटे से ये सारे शेप्स बनाओगे। इसे लास्ट में डेकोरेशन के लिए आप ऑनियन के सीड्स, कांदे के जो बीज आते हैं वो ले सकते हो। मस्टर्ड सीड्स यानी राई जिसे हम कहते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं, या आप कोई भी तरीके का दाल यूज़ कर सकते हो उससे चिपकाने और डेकोरेट करने में। लास्ट पॉइंट, यू कैन यूज़ द सेम डव अगेन एंड अगेन। बच्चों आप उसी डव से, उसी आटे से अलग अलग शेप्स तैयार कर सकते हो और बार बार उसी आटे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डव। बच्चों अब टेक्स्ट बुक में आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो डव से यानी आटे से बनाया है। अब आपको इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना है आटे से। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज बॉल, सेकेंड इज ब्रिक, थर्ड इज क्यूब, फोर्थ इज कोन, द नेक्स्ट लाइन, फिफ्थ वन इज रिंग्स, then biscuit, then cylinder, last one plate and bowl, the third line hut, wheel, basket, fish. So you are going to prepare all these objects from dough. तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप बुक में देख रहे हो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको आटे से बनाने हैं। जो मैं आपको अब मैंने जो बनाया है वो आपको दिखाऊंगी, तो उसी तरीके से आपको आपके घर पर इन्हें बनाना है। बॉल, फर्स्ट है बॉल, सर्कल शेप। नेक्स्ट इज ब्रिक यानी ईटा जिसे हम कहते हैं ईट, ब्रिक ये भी है, आप देख सकते हो इसका शेप रेक्टेंगल शेप में है। देन क्यूब, क्यूब का शेप क्यूब है। कोन, यू कैन सी द कोन शेप। देन रिंग्स, रिंग्स सर्कल शेप में है। बिस्किट स्क्वायर शेप में। सिलेंडर, द शेप ऑफ द सिलेंडर इज सिलेंडर। प्लेट एंड बाउल इज सर्कल इन शेप। हट इज अगेन स्क्वायर। wheel is circle in shape. Basket again circle and fish is oval in shape. Instruction: instead of dough, clay can be used. Second, use different types of dals to decorate the objects. So students, you can see that I have prepared the shapes for you all from the dough. Okay students, so in the same way you have to prepare at your home as I have done it and showed you all. बच्चों मैंने आटे से जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बनाए हैं। अब मैं आपको उन शेप्स के नाम बताने वाली हूँ। आपको भी इसी तरह घर पर आपके ट्राई करना है। So students, I have prepared the various different shapes from the dough that I have showed you all. Now let us name the shapes. What are the shapes and which things have I prepared? Okay students, so let us begin. You can see this shape. This is called a circle. Yes or no? Yes. Why? Because this is round in shape. This is circle. The next again, this is a ring. You can see both the rings. This is also again circle in shape. You can see this is like a cone. Yes or no? Yes. You can see the H point over here. बच्चों आप देख सकते हो ये कौन सा शेप है, ये है कोन, कोन शेप। अगेन द नेक्स्ट वन, दिस इज यू कैन सी स्क्वायर शेप।
Which shape this is? Square shape. You can call it as biscuit also. This is wheel. Circle shape, round shape. This is wheel. बच्चों ये wheel है और ये circle shape का है. This is cylinder. Shape you can see it is standing and it is cylinder in shape. You can see the house. The house is square somewhat in shape. And you can see again this is a basket and you can see the basket again it is circle in shape. And here it is a small bowl, again it is circle in shape. And this is a fish, as you can see this is oval in shape. Why oval? Because this part you can see this part is like a shape of a egg, oval shape. बच्चों आपको यहाँ पर सारे शेप्स के मैंने इंट्रोडक्शन बताए हैं. आप जैसे कि देख सकते हो अब मैं बताने वाली हूँ. ये है सर्कल शेप बॉल, ये है रिंग, वापस से ये है सर्कल शेप क्योंकि ये बिल्कुल राउंड है. ये है कोन, दिस इज अ कोन शेप. दिस इज अ व्हील, ये है व्हील, चक्र जिसे कहते हैं, गाड़ी का पहिया बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है. ये सुनो बच्चों, तो ये है व्हील शेप. दिस इज अ स्क्वायर शेप लाइक अ बिस्किट, यू कैन सी स्क्वायर. दिस इज अ सिलेंडर शेप, you can see cylinder shape, yes. And again this is a house, a square type shape. And again bowl, बाउल जिसे हम हिंदी में कहते हैं कटोरी, तो ये भी आप देख सकते हो कि सर्कल शेप का है. और जो फिश है ये है ओवल शेप. ओवल, वाई ओवल? बिकॉज ये जो पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल ओवल शेप का है. So students, you have to prepare it at your home. बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में और इस वीडियो को देखते हुए आपको इन सारे शेप्स घर पर बनाने हैं. और इसके लिए मैंने मैदे का आटा यूज़ किया है. I have used the flour. Flour means the आटा, you can call it as in Hindi. And I have used the maida that is white in color. Okay students, so you can prepare from that the shapes. These all shapes we have learned in the lesson, as in the textbook also. Somewhat you can see that they have shown us the example. बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे लेसन में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं. उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर कुछ शेप्स बनाए हैं. तो आप आपके घर पे ट्राई कीजिए इन शेप्स को बनाने के लिए. यदि आपके पास आटा, अगर आप चाहते हो कि आप आटे से ना बनाओ तो आप क्ले का यूज़ कर सकते हो. क्ले यानी आपको शॉप में आप क्ले पूछोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. अगर जो बच्चे गांव में हैं वो मट्टी से यानी गीली मट्टी से भी बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यू कैन यूज़ द फ्लावर दैट इज़ आटा, क्ले और मड ऑल्सो. तो बच्चों आप आटे से, क्ले से या गीले मट्टी से आप बना सकते हो. सो स्टूडेंट्स ट्राई ऑल द शेप्स दैट इज सर्कल, स्क्वायर, सिलेंडर, ओवल. And as you can see that various designs are there. Now you can also see that I have sticked some dals for the decoration, so you can use any of the dal for decorating your shapes. बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने कुछ शेप्स पर यहाँ पर दाल यूज़ किए हैं, तो आप दाल का यूज़ कर सकते हो डेकोरेशन पार्ट के लिए. Okay students, so you can decorate from any of the dal, that is तुअर दाल, मूंग दाल और any pulses you can take. बच्चों आप कोई भी पल्सेस यानी कोई भी अनाज के दाने ले सकते हो जिससे आपको डिज़ाइन दे सको आपके शेप्स को. सो स्टूडेंट्स ट्राई इट इन योर होम and you will get an idea
that from the flour, that is from the atta, we have dough, we have prepared the shapes. So in this lesson we have learned the shapes. तो बच्चों इस लेसन में हमने शेप्स लर्न किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डू प्रिपेयर एंड क्लिक द फोटो एंड send it on the group. Okay students.